प्रणाम गुरुजी गुरुमा। सभी का स्वागत है आज के जूम के सेशन में, जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है गुरुजी गुरुमा के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करने का। जो भी अपनी शेयरिंग शेयर करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, द क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिलेशनशिप हार्मनी, पर्सनल चैलेंजेस। जो भी आपके लाइफ में कोई भी क्वेश्चन अगर है, तो आप वो अभी हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है गुरुजी गुरुमा से पूछने का। सो प्लीज कम फॉरवर्ड, यू कैन इधर रेज योर हैंड और मैसेज हियर इन द चैट। आपको हम अनम्यूट कर देंगे, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकेंगे। Yes, Shrikant, you can start. Last Raja is one first. It's your lottery. You have to unmute. You have to unmute. श्रीकांत जी, प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर एंड। Pranam Guruji and Guruma, and pranams to all. And thank you, Guruji, for giving me the first option. You are always first. Thank you, thank you. Your And voice comes last, but yeah, you are always first thank you, Guruji. And because you have Okay. been a very close devotee of Swamiji. and it's all your elders' Ashirwad, Guruji. So you are like Guru Bhai to us. Yes, yes. Yes, yes. And I actually, Guruji, like I have a dot, small dot here. Yeah. It's a like Guruji, it's a like when we are in this world, so behaviorism is more important. It's plays a great role, no, Guruji? Yes, definitely. Yes, Guruji. Definitely. So Without this word, Oh, then. your voice is breaking. so yeah, as we are, I 1 minute, Guruji. वो निकालना Yes. कहाँ Fine. गुरुजी नहीं उन लोग कर रहे हैं ना हाँ अभी नहीं कर सकते ना Virat Kohli. विराट कोहली So विराट कोहली नाम लिखा हुआ है हाँ श्रीकांत कंटिन्यू yes, Guruji. I will I give some small example, Guruji, so that you can understand my question, Guruji. Like Guruji, suppose Guruji, if there are a student who is in fifth standard or sixth standard, so they have their own limited knowledge. So as a senior to them, if I am giving them some subject knowledge to them, Guruji, and with the same with a kind of intention of adhyatmic or atmita, and same time I'm giving some subject material subject knowledge to them, Guruji. So the student, because of his own age limits or his own understanding limits, so he might be having exposure to the agyanta, Guruji. Like agyanta in sense, apart from the good things, he may be intended to do naughty things or yeah all the different naughty things of the or with the atmita, we are interacting with them in a good manner, and also helping them in understanding is subject is material subject knowledge, Guru. So their own intention will be not inclined to our knowledge, Guruji. So at that situation, Guruji, like how to deal those how to deal that situation, Guruji. see human beings are meant to also progress in material world Yes, Guruji. because we have the intellect which other species don't have. Yeah, Guruji. So world is created so that humans help all 84 lakh species also to live in harmony, to progress in the world,
to uh, to develop, do research, discover newer things. That is one aspect of being human. And the other aspect of being human is to realize oneself. All 84 lakh species cannot do this. Exactly, They Guruji. can live only on their animal instincts. So we have greater responsibility. God, after God, it is the human being which has great responsibility. God has given to the human a great responsibility that you go to the world which has been created by God. World is created, universe is created by the God. He has sent humans to come to the world as his representative and develop the world in a nicer way, create harmony among all the species, let the world materialistically also grow, develop, because when materialistically when the world grows, our intellect also grows. Suppose there is no material growth, we don't require to build houses, we don't require to build, roads, vehicles, or we don't think of going to the moon, then our intellect also would not have developed, Yes, Guruji. isn't it? Yes, Guruji. So these are the tools for our intellect to develop. In the uh, in the olden age, when all humans were living in the caves, Yes, during Guruji. that time their intellect was not developed so as to realize themselves. They cannot realize their own conscious self. So they had to come out of those caves, develop the world, develop the intellect, and then walk on the path of spirituality. So world is needed even for our spiritual progress. Yes, Guruji. World and intellect, both are needed. Yeah. Without the world, without the intellect, without human body, we would not be able to develop into spirituality also. Yes, So yes. initial steps are the world, intellect, wisdom, then jnana, then guru-disciple relationship, meditation, nididhyasan, and then you realize your own self. So these are the steps, and for these steps, the world is created by God. Yes, yes. And it is also a fact that some people have evolved first. They help others to evolve, like what you're talking about. Some students are studying in 5th class, Yes, Guruji. and somebody is studying in 10th class. 10th class student will teach to the 5th class student. Yeah, Guruji. Graduates will teach to the 10th class students. PhD students will teach to the graduates. This also happens in the world. Yes, Guruji. So it's a progression. It's a natural progression. And it's a perfect system in the world. Got it? Yeah, yes, Guruji. Yes. Very nice. Okay, okay. Thank you, Guruji. Thank you. Welcome. Hi, Yes. Galina. Galina is there today. Hi, Galina. How are Hi you? everyone. So, Namaste Guruji Guruma. My Back- pranam from Russia. Mm, Thank you for that retreat in Bangalore. Still feeling this divine energy inside and still feeling warm love inside in me and surround me. And You. about the question, the simple question from the simple person. Sometimes when you do a hard work, you feel tired. For example, sometimes after retreat or after my special work, I feel
tied not only in the body, like tied in the energy. What to do better for best for fast doing myself better? You get mentally tired or physically you get tired? Mental. Both. I think both. If you, Physically, I know the good sleep help. Mentally. yeah, mostly it is mentally. In the retreat, we spoke about 1 minute meditation. ठीक 1 minute meditation. हाँ So if you continue practicing 1 minute meditation every 1 or 2 hours, you will not get tired so much, because that 1 minute is enough to recharge, to energize your mind. Our problem is we use the mind so much continuously for 8 hours, 10 hours, 12 hours. So mind gets tired. Mind requires a break. At regular intervals, mind requires break. yes I understand. If you give that break and meditate for a minute or 2 minutes, you will not get tired in the evening or in the night. You will be as much fresh as you are in the morning. Okay. Just meditating every day in the morning for half an hour or 1 hour is not enough. It हाँ has to be done regularly. Take a break of 1 minute, 2 minutes every 1 or 2 hours. You will not get tired. Night also you will be with the same energy as you're in the morning. Okay. Thank you, Guruji. And number two, another aspect. If you take everything on yourself, that you are doing it, then you get easily tired. If you feel you are doing for the Supreme Divine, for the God, or for the Guru, then you will not get so much tired. Okay. In our Swamiji's ashram, we had seen people working since morning 4 o'clock, 5 o'clock, and till night 12 o'clock. We never saw them tired. Entire day, they are running, they are cleaning, sweeping, with a smile on their face, because they were always thinking about Swamiji. Swamiji is sitting there, Swamiji is walking, Swamiji is seeing them. So they used to feel energetic all the time. So if you feel that the divine is looking at you, God is looking at you, God is walking with you, God is working with you, then you will not feel so much tired. You will have the energy. But if you take it on yourself, then you will have that tiredness, stress. These two things will definitely help. Thank you so much. So how are your friends? Did they all like the retreat? Yeah, they're all good. नहीं बोलो ना हाँ बोलो All good. Thank you so much. I will ask them to write some message for you. Yeah. Yeah, Ask like them to be active in the group. They can Take- write, they can share their experience, they can ask questions. They should do that. Either okay. in our Tumen group or in our other WhatsApp group, any group. Yeah. Let them be active so that their journey can continue. Okay. It need not be only spiritual. It can be their personal matter. It can be about profession. It can be about anything. Let them be active. Haha. Thank you so much. Good. Prabhavati.
गुरुजी, गुरु माँ को मेरा बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। मैं आपके उसमें लाइफ उसके 25वीं थी ना, उसमें मैं हाँ आई, देखिए मेरी हाँ बहुत इच्छा थी ना, तो वो आपने करी, गुरुदेव किसी ने भी मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। हुआ क्या कि मेरी बहू के ऑर्डर रहते, तो कार हमारे पास एक ही है, तो हाँ, उसका एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मैं सवेरे सवेरे आ गई फिर, इसलिए। और मेरे को आने का भी था वापस, तो हम्म, उन्होंने बोले तुम प्रोग्राम अटेंड करके आ जाओ। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बोल नहीं सकती, पूरी रात सोई नहीं खुशी के मारे। आपसे मिलूंगी और गुरु माँ के दर्शन करूंगी बोल के पूरी रात सोई नहीं, 1-2 घंटे नींद आई बस केवल। फिर मेरा बेटा उठाया कि अरे मम्मी 7:30 बज गया, आपको उठना नहीं है क्या, बोल के। ऐसा लेकिन हुआ, तो लेकिन वही आपसे शेयर करना चाहती थी। ऑर्डर हाँ। कैंसिल हो गया वो हमको अच्छा नहीं लगा सुन करके। क्यों अच्छा नहीं लगा? आपकी बहू का ऑर्डर कैंसिल हो गया आप बोल रहे हो, आपका आना अच्छा हाँ, लगा। तो वो, अब कुछ भी हो, कार एक ही है ना, तो उन्होंने लेके जाती, तो मेरे को बोले बिना कार के आप नहीं जाना, इसलिए हाँ मैं पूछी थी लोगों से। फिर हुआ ऐसा कि मैं 2 लोगों को बिठा के लाई आते हाँ, समय। वाह वेरी नाइस। हाँ। नहीं तो हाँ। उसको हाँ। बोलना उसकी ऑर्डर की पूर्ति हो जाएगी। हाँ, वो तो हो जाएगी गुरुदेव, कुछ भी नहीं है, बस केवल खुशी मिली मेरे को, तो मैं बोल नहीं सकती। बहुत मैं अच्छा इतनी लगा। खुश थी, इतनी खुश थी कि बस बोल नहीं सकती हूँ। मैं बहुत खुश थी, खुशी के मारे मेरे को नींद ही नहीं आई। ये भी बोल रहे रात में कि क्या आज जगने का विचार है क्या। मैं बोली हाँ, मेरे को जाने का है, तो मेरे को जल्दी उठने का है। तो फिर बोले तुम सोए नहीं तो उठते कैसे, वो और वही हुआ। तो होता ही है, वो हाँ। एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती है। हाँ, मेरे को पता नहीं क्या, ये बहुत बड़ी बीमारी है समझो, एक प्रकार की। बीमारी नहीं कभी है, किसी, हाँ, हम लोग। खुशी की बीमारी है ये। हाँ हाँ, वो किसी से मिलना रहे कुछ भी। हम लोग ऐसे घूमने भी जाते ना कहीं पर भी, जैसे अब सावन की सैर वगैरह रहती, तो हमारे ग्रुप में जाते, तो पूरी रात बस नींद ही नहीं आती उसमें, कि कब सवेरा हो कब जाए, कब सवेरा हो कब जाए। उन्होंने सही कहा हाँ। कि खुशी की बीमारी है ये। हाँ, वही। चलिए, बहुत अच्छा लगा उस दिन में आके, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा हाँ, लगा। बहुत पसंद आया सब चीज, बहुत ठीक अच्छा लगा। हाँ, ठीक है। ये नव्या बात करती है, 1 मिनट। अच्छा, बात करो गुरु माँ से, बोलो जल्दी से। अच्छा। प्रणाम गुरुजी गुरु माँ। खुश रहो। विराट कोहली नाम तुम रखी क्या? हाँ, इन्हों मेरे को मालूम भी नहीं है, ये मेरी गुरु है इसकी टेलीफोन की, चलाना मेरे को आता नहीं कुछ भी। हाँ तो ऑब्वियसली। हाँ, इन्हों ही सब बता रही कि ऐसा करो बोल के, हाथ उठाओ, फिर ऐसा म्यूट हुए तो तुम आंसर देना। मेरे को नहीं आता गुरुजी, ये सब नहीं आता मेरे को, ये सब चीजें। ये सब बच्चों को ही ज्यादा अच्छा से आता है। हाँ, नहीं, पर अपने को भी सीखना चाहिए ना। सीख मेरे को लीजिए। ना पेटीएम आता, ना अच्छा, गूगल पे आता, कुछ भी नहीं आता, वो सब कैश का आता बस केवल। बस है ना, पैसों का आता है तो काफी है, और क्या करना है। नहीं नहीं, वही सब लोग बोलते हैं आजकल पेटीएम का सिस्टम हो गया ना, तो वो अपने को आता नहीं, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि मम्मी उसमें धोखा भी होता, नको करो तुम, बोल के। हमको हमको कंप्यूटर फोन आता है, पेटीएम नहीं आता। हाँ। पैसों का काम ही नहीं है हमारे पास। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका हंसता हुआ चेहरा देख लिया, गुरु माँ का हंसता हुआ चेहरा देख लिया, तो बस सारी बीमारी दूर हो जाती है हमारी तो। मैं 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 चला जाऊं उठ के। आपका भी नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके दर्शन के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर। मैं इसको बोली, ये मेरा फोन यूज करती रहती है नव्या, तो मैं बोली अभी गुरुजी का प्रोग्राम आने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए दे दे मेरे को, मैं अटेंड कौन करूंगी। कौन सी क्लास में पढ़ रही है नव्या? चौथी, चौथी। अच्छा, उससे कुछ हाँ। पूछना है क्या? हाँ, पूछना है आपको कुछ? नहीं। अच्छा। क्रिकेट देखती है क्या? अरे क्रिकेट का बहुत शौक है, विराट कोहली का इतना है उसको, वो उसके लिखा था। नाम का। उस दिन उसका बर्थडे के केक कटवाई, हम हाँ उसके पापा को लाके। मैं बोली विराट कोहली की, उसकी भी शादी भी हो गई, और मैं बोली तुमको तो वो जानता भी नहीं है, तुम काहे को इतना वो करते हो। तो बोले बस हर बात में विराट कोहली, विराट कोहली, उसके उसमें भी विराट कोहली का नाम लगा के रख रखी है हाँ, सब। वही तो, वो फोन में बहुत विराट। पसंद है उसको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात हम्म। है। अच्छे लोग नहीं, पसंद रहना अच्छी अच्छी तो बात बात है, अभी उसको समझ में नहीं आता ना कुछ भी, समझो, पर है। उसकी दीवानी है उन्हों।
ऐसा कुछ नहीं है समझ में नहीं आता है, आजकल छोटे बच्चों को सब समझ में आता है। बहुत बहुत समझदार है बच्चे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसको क्रिकेट बहुत पसंद है ना, यहाँ खेलती ना क्रिकेट, तो हाँ, बैट है सब है। वो उसको आप कोचिंग भी दिलाई थे हम लोगों ने थोड़ा। आप सो के लिए एक लेसन है कि वो जितनी दीवानी है विराट कोहली के लिए, और बेस्ट को चूज करिए जो अभी हाँ बेस्ट है क्रिकेटर। हाँ तो हाँ, हाँ। बेस्ट गुरु में ऐसा पागलपन दिखाना चाहिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, बस केवल ठीक है। और क्या है, सब अच्छा चल रहा है गुरुदेव। कुछ अच्छा, भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, बस चलता रहता है, ऐसे। कोई खास बात नहीं, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो वो करो, आप म्यूट करो, म्यूट करो। गुरुजी, सोनाली सिन्हा जी यहाँ पर हैं, वो आपसे कुछ इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, सोनाली जी, यू कैन स्पीक नाउ। Yeah. Namaste, Guruji, Gurumaji. हाँ सुना। Uh, it was really very joyful and blissful to meet you on the 21st, 25th anniversary. मैं योर just वीडियो Facebook, इज ऑफ। हाँ कैन यू, जी, आपका वीडियो ऑफ है, कैन यू स्विच ऑन द वीडियो? my अच्छा video ऑन है। is on already. क्लियर नहीं दिख अच्छा रहा है। अंधेरे में है। हाँ, थोड़ा अंधेरे में Yeah, yeah, गुरुजी, yeah. I अदरवाइज। think you can see me now. Oh, अच्छा just ठीक, a minute. ठीक है बोलिए। हाँ, तो मैं फेसबुक से आई एम ए वेरी फ्रीक्वेंट पोस्ट करती हूँ मैं फेसबुक में। तो ओके। उसमें आपका आई केम अक्रॉस। एक्चुअली मैं इंडिया से बाहर ही रहती थी पहले, फर्स्ट ओह, टाइम आई एम इन इंडिया, तो मैं सोची व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू। वेरी नाइस। एंड अभी क्या है कि मैं अभी ये हैदराबाद का G100 का चेयरपर्सन भी हूँ, हैदराबाद का। तो ओह, मेरा जो काम है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये ओह, वॉलेंट्री वर्क है। हम्म, तो मैं सोची इफ आई गो देयर मे बी आई कैन सी सम अपॉर्चुनिटीज जिसमें आई कैन टेक द वुमेन एंड गर्ल्स टू योर आश्रम, जहाँ यस, पे आप उनको कुछ एडवाइस दे सकते हैं या some enlightenment, डेफिनेटली, of the souls, you can do it for them. या So, या so मैं वही सोच रही थी, if I get an opportunity and you also give me a chance for that. या uh, श्योर, एनी टाइम वी कैन प्लान। sure, वी sure, कैन, sure. आप So, अपने आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए आपका जो भी प्लान है। हाँ आप जी, और प्रोसेस है, वी कैन ऑर्गेनाइज समथिंग इन द आश्रम। yes, in the ashram I can bring those people there. That would be great, we would love it। Yeah, so it will be an opportunity for me for the second time also now to Oh meet you yes, again. oh yes, we will organize everything, don't bother, you just mention in the group। आप कौन से ग्रुप में हैं? अमृतशाला में कहीं है क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में है, है ना? आपका गुरुमा के ग्रुप में ही है आप। उसमें पोस्ट कर दीजिए, कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा हाँ जी, हाँ एंड जी, प्लान। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू गुरु, यू कैन थैंक यू। यू कैन राइट टू रतन ज्योत ऑल्सो, ओके। और यू पोस्ट इन द ग्रुप कि आप हम्म, ये प्लान है, इतने लोग आने वाले हैं, कब करना चाहते हैं, कब लाना चाहते हैं। यू हाँ कैन जी, यू कैन गिव सम डिटेल्स। ओके हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव who can नो, come? based on how much you can, like, you suggest, I will bring so many people only. We can have any number of 10,000 people. Okay, I'll try to see. No, I'm just saying, Yeah, I understand. Yeah, no problem. you Okay. can mention in the group Hmm. what kind of, how much time you need, how many people you want to bring them. We will create all the facility, don't bother. It would be a great pleasure for us. Women and Thank you, Guruji. Thank you. actually we are famous for women empowerment. We support Oh, women much more than, we don't support men at all. really? All No, husbands. if you support the women, automatically you're supporting the man also, isn't it? Yeah, that's Because आप true. ही ने बोला है कि जब घर में वाइफ शांत रहती है तो Correct. घर का माहौल भी शांत ही रहेगा। वाइफ शांत रहती है, वाइफ बोलती है तो भी घर का माहौल अच्छा रहता है, वाइफ हंसती है तो घर का माहौल अच्छा रहता है। देख लीजिए, सब लोग गुरु माँ की तारीफ करते हैं, गुरु माँ की स्माइल, गुरु माँ की स्माइल, तो हम भी स्वस्थ रहते हैं उसके कारण।
हाँ वो तो है, वो तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स तो हाँ, स्प्रेड होता ही है ना, सो वुमेन तो वैसे भी शक्ति का ही स्वरूप है. हाँ जी, हाँ She जी, is, yeah. woman is the embodiment of Shakti, dynamic consciousness, which people don't understand. In many families, when they grow materially, I tell them that there is an invisible force which has supported your growth, and that is the women of your family. Men appear to be doing a lot of things, men appear to be working hard, but the power they get is from the women, their bhavna, which they don't realize. I think so you should have only for men one satsang to teach them that. Now you are shifted from women empowerment to men. Yeah, Because that is more important. Root I cause is there agree. itself. I agree. To break their ego, they have to be made. They have to realize this. Realize. I agree. And in fact, if in your group, if they are married, they are couples, then we can invite both husband, Okay. wife, family, children. We can plan that. Okay, sir. Sure. So, Thank you. Thank you very much. I'll be planning that and I'll be sending it to you, sir. yeah, you can post in the group. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. और कोई है क्या? जी गुरुजी, वेंकटेश्वर जी ने अपना हैंड रेस किया है। हाँ. वेंकटेश्वर जी, आप अब बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए वेंकटेश्वर जी, आपका आपके साइड से। It is unmute, ma'am. हाँ Guruji, Guruma, Pranam. Yes, Venkatesh. Guruji, like this time in the ashramam, we like 25 years enlightenment day. It is celebrated like one big festival, Guruji. So Yeah. totally it was different. When Guruma talk was there, very much lot of awareness we got, madam. Guruji, in that Guruma and you, both of you said about awareness. So Yeah. really, Guruji, I got very much awareness about what is the actual awareness. Mm. So in that you told Guruji, like awareness is like normal person and enlightenment person in between. Awareness is there. Wow. So that awareness will make person will make enlightenment. Enlightened. And awareness, you told Guruji one more, like what mind is thinking and what type of feeling it is having, and what is the action, what is the reaction you are doing. No reaction, no action we should do. So Yes. when mind thinks. So really, Guruji, like Guruma told, the best school they want to join best school for their children. Like that, we have joined the best school, that is Purnananda school, and this is the universal school, Guruji. So awareness, about awareness, I am very much by this, that the single word, I am really got a lot of awareness how to now thoughts are coming, but no, there is no anger, there is no upset in that awareness, Guruji. Very nice. Very nice. Really, it is my lot of gratitude and dhanyavad to Guruji and Guruma. Welcome, welcome. Practice this awareness consciously for some time. Yes, And Guruji. become your habit, it will become your nature. Yes, Guruji. You have Yes, to be Guruji. always aware of not only the mind, of your intellect, of your breath, of your physical actions. Even if you get hungry, you should be Yes, sir. aware. Yeah, When you eat food, you should be aware. yeah, When you feel sleepy, you should be aware. yeah. In every activity, you should be Okay. aware of that activity. When Yeah. this awareness increases, Yeah. as I said, it will take you to that awakened state. Okay, Guruji. Buddha was nothing but complete awareness. Yes, Guruji. Unawareness is Maya. Awareness is enlightenment. Simple. Yes. We are mostly unaware of what is happening within us and unaware of what is happening outside.
So once that awareness is established, then you are a divine being. Okay, Guru. Very nice. Guruji, Proceed. previously, Guruji, I was not understanding, but now every single word of Gurumas and yours, Guruji, it is like I am understanding very clearly, Guruji. Like I am listening the bliss from many years, Guruji. Now, what is the meaning of bliss? I understood, Guruji. Very nice. Actual bliss. How person will be when problems will come in difficult situation. Also, he will not react. Correct. So that bliss I understood. He will be in a calm mind when this all things are. Now only I understood, Guruji, on that Enlightenment Day, yours, the festival. So on that day only, this all awareness, bliss, and the difference between normal person and as well as enlightened person. What is in between? It is there. So I am by understanding that one, Guruji, I am a little bit, lot of changes has come in me, and We had to survive our enlightenment for 25 years to make you understand this. yes, Guruji, this is really miracle happened in my life because I am attending satsangs. But what is the actual thing I understood on particular festival? So it was really That happens with many people at different point of time in different satsangs, during different talks, different jnana strikes to different people. So that is normal. Don't bother. Now continue this practice. Be aware of everything and keep sharing in the group your experiences. sure, Okay. Guruji. Thank you very much, Guruji and Guruma. Okay. गुरुजी, रंजना जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। आंटी आप अनम्यूट कर लें प्लीज। प्रणाम प्रणाम गुरुजी गुरुमा। सभी को प्रणाम। गुरुमा बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं गुरुमा? दिल्ली में आ गई तुम? दिल्ली आ गई क्या अभी? गुरुजी कल रात को ही वापस आया है हिमाचल से। वहाँ का प्रोजेक्ट आपने इस शरीर से करा लिया, अब यहाँ ले आए हैं। तुम्हारा कमरा देख करके समझ गए कि तुम दिल्ली में हो। जी जी गुरुजी, रात को ही आए हैं वापस वहाँ से। ठीक है। और बच्चों ने आना है बाहर से और बेटी बाहर से आ रही है तो मिलने के लिए, फिर इसलिए वापस आना पड़ा। ओके। बट गुरुजी रिट्रीट के बाद तो आपने हमें म्यूट वाले मोड में रखा हुआ है। अच्छा। वहां पे हमारी खांसी और चेस्ट कंजेशन तबीयत तब खराब थी जब हम गए थे रिट्रीट में, और वो फिर वर्ष ही होती चली गई, मतलब शरीर के उससे। और जब हम आए गुरुजी वहां से तो उस रात हम जब रात को पहुंचे, मतलब बड़ी लंबी स्टोरी भी आप कहेंगे गुरुजी की हम बोलते, लेकिन गुरुजी गला वोकल कॉर्ड चली गई और हम एक हफ्ते तक आवाज नहीं आई, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। आई वॉज ओनली लिपसिंग। तो उस कंडीशन में गुरुजी हमने, वो भी आपने बड़ा एक्सपीरियंस कराया है कि इस बिना बोले इस जीत के द्वारा भी हम अंदर से, वो अलग ही स्थिति थी। बहुत आनंद आया उस स्थिति में भी हमें, इतना मजा था। जब सुनना नहीं है, बोलना नहीं है तो सुनने का भी मन नहीं है ज्यादा, और कोई हमारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं है किसी का कि जब ये बोल ही नहीं सकती तो क्यों बुलाए इसको ज्यादा। और ये सिचुएशन गांव में बड़ी कहें कि थोड़ा सा वहाँ व्यवहारिक होना पड़ता है कि जो आता है अपनी सुनाता है, वो अपने हिसाब से सब रिश्तेदार सबकी सुननी है। बीइंग बहू होके तो बिल्कुल ही ऐसा है, लेकिन बहुत वो अमेजिंग सिचुएशन थी जिसने सिखा दिया कि आपको कैसे रहना है यहाँ पे। बहुत अच्छा है। ये मौन व्रत जबरदस्ती करवाया गया तुम्हारे से। गुरु जी आपने तो हम पर बड़ी कृपा करी जो हमें ये नया एक्सपीरियंस दिया। हमारे मदर को सुनाई नहीं देता था और हमसे बोला नहीं जाता था, तो बड़ा अमेजिंग था कि दोनों का मोड अलग ही था। जब कम बोलते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी सुखी रहते हैं। बहुत सुखी है गुरुजी, हमारा कोई रिएक्शन ही नहीं जा रहा। जो थोड़ा बहुत होता था वो भी नहीं जा रहा। हम भी सुखी, संसार भी सुखी, सब कम बोलते हैं तो। वो सिचुएशन को समझा गुरुजी कि शरीर के एक एक अंग या हर चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस ये बताया गया है कि हर अंग, हर ऑर्गन, हर हमारे सेंसेस, ये सब बने हैं अपने अपने कार्य करने के लिए। हमारी इंद्रियां जो है
कार्य करने के लिए है, लेकिन हम उसको मिसयूज करते हैं। जी बोलने के लिए मुंह मिला है, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले के कान के पर्दे पड़ जाए। इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि हम बोलते जाएं, सामने वाले इरिटेट होते जाएं। जी कान भी दिया गया है कि हमें वही सुनना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, बाकी चीजें नहीं सुननी चाहिए। आंखें इसलिए दी गई है कि हमारे लिए जो अच्छा है वो देखें, बाकी नहीं देखें। जैसे टीवी है, टीवी में 100 चीजें हैं, जी तो हमको वही देखनी है जो हमारे लिए अच्छी है, वही सुनना है हमको जो हमारे लिए अच्छा है। हमारी इंद्रियां इसीलिए दी गई है, लेकिन हम उनको मिसयूज करते हैं। जी तो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा तुमको अनुभव कराने के लिए सब कर दिया गया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो अच्छा शेयरिंग है, बहुत अच्छी बात है। जी गुरुजी, आपने मतलब ऐसे जीरो मोड में कहीं का बार तो ऐसा भी लगा कि हम जीरो मोड वाले उसमें आ गए, जीरो ही हो गए हैं कि हम किधर हैं हमें खुद को ही नहीं पता, सब हुए जाता है, हो रहा है शरीर के द्वारा सब कुछ, सब ड्यूटीज हो रही हैं करें, लेकिन खुद का समझ नहीं है कि हमें शायद बुद्धि इतनी नहीं है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, बस आप कर रहे हैं और हो रहा है। नहीं, बट हम बहुत मस्त अच्छा, है, बहुत अच्छा। मस्त है, शरीर में हो चाहे कैसे भी हो, ये बड़ी कृपा है आपकी। हमने ब्लिस एंजॉय किया, कम बोलना, कम सुनने से। तब जी ये एक लेसन है लाइफ के लिए, कि आगे भी हमको इतना फॉलो करना है कि जितना जरूरत है उतना ही बोलो, जितना सुनना है उतना ही सुनो। ये एक जी लेसन। तो जी इसको, ये प्रकृति का खेल था, लेकिन हमारे लिए लेसन है। जी गुरु जी, और हम वो आपके एनलाइटनमेंट के लिए वाले डे का हम लाइव नहीं देख पाए उस दिन, अगले दिन भी। उस दिन हमारी एक फंक्शन था, सिस्टर के बेटे की एंगेजमेंट हुई गांव में, तो हम फुल एंजॉय कर रहे थे, आपका बहुत अच्छे कपड़े पहन के डांस करके। हम यही सोच रहे थे इस टाइम वहां पे गुरु जी के वहां हो रहे हैं, तो शायद हम उसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, हमको बधाई कि आप हमें मिले हैं गुरु जी। अवेयरनेस की जो बात अभी कर रहे थे ना वेंकट जी, ये कांस्टेंट नहीं रहती, बस यही थोड़ा आप कृपा करें, हम भी चाहते हैं कि आती है चली जाती है। कुछ रही है। जी गुरु जी। हाँ, क्या? गुरुजी, बलवा जी आपसे ब्लेसिंग्स लेना चाह रहे हैं। बलवा अंकल, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके आप बात करें। अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है अंकल। नीचे लेफ्ट साइड पे एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा, या आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। चलिए, तब तक और कोई बात कर लेगा। जी, और कोई गुरुजी से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज हैंड रेस कीजिए और यहाँ पे बताइए। जोसेफ, यू वांट टू टॉक समथिंग? जोसेफ अंकल, you can unmute from your end and हाँ, इसका तो यस जोसेफ। बोलो। अब कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हैं। जी जी कीजिए। गुरु जी, गुरु माँ, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, बहुत बोलिए। बहुत प्रणाम गुरु जी। हाँ, बहुत बहुत महीनों से मिस कर रहा हूँ गुरु जी आपका सत्संग। पहले हाँ। तो 4 महीने बॉम्बे में हॉस्पिटलाइजेशन में मेरा ऑपरेशन हुआ था, अच्छा, अच्छा। तो मेरा ये पेंक्रियाज का, ओ, सॉरी, इसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। ओके। उसका रिकवर करके अब थोड़ा मैं तो अभी आई एम 100% ओके नाउ। वेरी नाइस। उसके बीच में पत्नी को ड्राई कफ हो गई, हाँ, तो हाँ। बहुत मिस कर रहा हूँ आपका आशीर्वाद। हालांकि मैं सत्संग ऑनलाइन तो देखता रहता हूँ, सुनते रहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेने की इच्छा है मेरी, तो अच्छा लग बहुत रहा मन में है। बहुत। आप हाँ, अब एकदम परफेक्ट। हाँ बैंगलोर में भी आने वाले थे रिट्रीट में, आ नहीं पाए। हाँ, रीट में मैं आने वाला था, अरविंद भाई को मैं मैसेज भी किया, मैं आ रहा हूँ करके। तो हाँ, क्यों, वहाँ बेंगलोर में मेरे ससुराल पक्ष रहते हैं, तो वो सब अच्छा। मुझे वेट भी करे, बोले सब अरेंजमेंट कर देंगे, आप आ जाइए। और ओ, पत्नी का बीच में ऐसा ये कॉफ का प्रॉब्लम हो गया, तो जा नहीं सके। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, यशोदा हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। ओके, गुरु ठीक। जी, वो तो नहीं आ सकता, मैं तो आऊंगा, मगर आपका आशीर्वाद हमेशा दिन और रात हमारे साथ रहता है। आप हमारे दोनों दिल में बसे हुए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, ठीक गुरु है। जी, जरूर जरूर आपका आशीर्वाद लेने में आऊंगा। अब हो गया, नेक्स्ट सत्संग में मैं जरूर आपका
सामने आपसे प्रस्तुत हो जाऊंगा। आपसे मिलने की हाँ करने की इच्छा रहती है हमारी। हाँ, वो हमारी वो पोती पोती को जिसने यहाँ पर नोटिस किया था, वो टाइम पे सत्संग में आई थी। वो अभी लीड्स यूनिवर्सिटी में वहां पर अच्छा। एडमिशन मिला, आज ही आई है वहां से वो, ओह, अच्छा। लंदन, लीड्स में। लीड्स में। तो हाँ, लंदन लंदन ओके। तो वहां पर वो 3 साल का कोर्स है उसका। तो अच्छा अभी अच्छा। यहाँ विंटर, वो ठंडी है, विंटर भी बहुत है, कभी क्रिसमस की हॉलीडेज है, तो आज आई है वो। तो ओके उसको ओके। भी एक बार आपके आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, जरूर भाई। और अगले पोता सत्संग में हमारा यहाँ नीलकंठ जो है, पोता हमारा नीलकंठ आश्रम, हाँ फिल्म सिटी के पास, फिल्म नगर के पास, सॉरी अच्छा। फिल्म सिटी के पास। हाँ हाँ। नीलकंठ का जो अपने स्वामी नारायण का ही मन है, ये है आश्रम, अच्छा उसी अच्छा। में वो पढ़ाई करता है। वो भी आज आज ही आया, वो भी 15 दिन छुट्टी के लिए आया है। तो दोनों ओ, को आशीर्वाद दिलाने में जरूर आऊंगा आपके पास। जरूर आइए। गुरु माँ का, आपका दोनों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ, बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। जरूर, बस आशीर्वाद देते रहिए आप। धन्यवाद। हाँ। गुरुजी, यस सर। आनंद बाबू जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। आनंद जी, यू कैन स्पीक। ओके। गुरुमा गुरुमा एंड गुरुमा जी को प्रणाम। सर यस सर। थोड़ा मैं तो फर्स्ट टाइम आया था फेसबुक ओके। देख के। हाँ हाँ। सर मैं थोड़ा हिंदी कम बात कर सकता हूँ, थोड़ा हम तेलुगु में भी ओके। तेलुगु में भी बात सकते। इंग्लिश। इंग्लिश यू कैन। इंग्लिश ऑल्सो थोड़ा थोड़ा आएगा, तो हिंदी में ट्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही बात कर लीजिए, बीच बीच में तेलुगु बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी या। एंड गुरुमा। सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। हाँ हाँ। तो मैं अभी रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, ओके और अभी 3 महीने से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। ओके। गुरु जी सॉरी। तो फोन कॉल्स और फोन्स नहीं आता था मेरे को, कुछ भी नहीं आता था। ये हाँ। परसों लास्ट टाइम आपके पास आया था 25 सिल्वर जुबली के लिए, हम्म। परसों आया था सर। तो आपका फोटो उतार लेके एक बार मैं फोटो स्टेटस में लगाया था, हाँ। गुरुमा का एंड गुरु जी का। तो जब से फोन आ रहा है, और बहुत जने फोन पूछ रहा है क्या है, इतना बड़ा आदमी से आप फोन उतार है, क्या है काम, क्या है, क्या कर रहे हैं उनके। हाँ। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। जस्ट वेरी आपका फोन के साथ आप एक फोन फोटो उतारे हैं तो इतना कॉल्स आ रहे हैं। जस्ट मैं आपको स्टेटस में ही लगाया, मैं अभी व्हाट्सएप और ट्विटर में नहीं लगा, इंस्टाग्राम में नहीं लगाया। ओके। थैंक यू वेरी गुरु जी। वेरी नाइस। अब उस दिन देख के प्रोग्राम, आपको, आश्रम में प्रोग्राम अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा है गुरु जी, अच्छा अच्छा लगा। लगा। आते बहुत रहना। अच्छा। नेक्स्ट नहीं प्रोग्राम नहीं, करते हैं। 100% आएगा, मगर ऐसा कांटेक्ट करना, किससे मिलना, मेरे कुछ भी नहीं मालूम। किससे मिलने की जरूरत नहीं, ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। सो अभी जो आज आज मॉर्निंग आया था मेरे को व्हाट्सएप, वही ग्रुप में रहना है क्या, और दूसरा आदमी से कुछ मिलने का रहता। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो बस है। ओके ओके ओके, कोई भी 100%। प्रोग्राम में आ सकते हैं हमारे, सब कोई भी प्रोग्राम में। थर्सडे हम्म, सत्संग आ सकते हैं। सर वेर, हाँ सर। వింటున్నాను कहाँ रहते हो आप? రెండు గిటార్ मैं చూడు मैं అదే అమౌంట్ हैदराबाद में रहता हूँ सर। తాకట్టు मेरा పెట్టినారు घर आएगा इधर संतोष नगर बोल के आएगा सर। संतोष नगर में। हाँ सर। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ तो नियर बाई बालापुर आएगा वो, बालापुर का गणेश हाँ गणेश हाँ। रहता है ना, वो हम्म। उधर आएगा। ठीक है। सिटी में भी हाँ सत्संग होता है ना, तब कभी भी थर्सडे जरूर सत्संग है, आश्रम में प्रोग्राम है, आ जाना। जरूर गुरु जी। बहुत ठीक। बहुत प्रणाम गुरु माँ को एंड गुरु जी को। विश यू ऑल आपका द बेस्ट। प्रणाम रहना। विश यू आपका ऑल द जस्ट बेस्ट। थैंक यू गुरु माँ। मेहनत लगा के काम कीजिए, अच्छे इंटेंशन से काम कीजिए, और सक्सेस मिलेगा आपको। 100% गुरु जी अभी। इंटेंशन हमारा, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। हाँ सर। हाँ गुरु जी। हमारी भावना अगर अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, और कभी भी एक एक्सपेंशन मोड में रहना, कभी भी बड़ा सोचना। कभी भी जितना। मैं हम्म। किधर भी नहीं गया था। लास्ट टाइम मैं हमारे फैमिली के साथ हमारे बच्चों को लेके आया था आपका हाँ आश्रम को। बहुत एंजॉय करे बच्चे लोग, डैडी कभी भी लेके आए तो हमारा भी लेके जाओ बोल के बहुत हैप्पी फील करे। सो वन मिस्टेड, हमारा बेटे से और हमारा वाइफ का फोटो आपसे नहीं उतारे, उन लोग जरा गुस्सा कर रहे।
हाँ नेक्स्ट टाइम आए टाइम पे एक बार एक फोटो ले तो और अच्छा है। जरूर जरूर नेक्स्ट टाइम डालेंगे। ओके। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। ऑल द बेस्ट। गुरुमा को एंड गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मोना जी आपसे इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। मोना हाँ जी, आप प्लीज अपने एंड से अनम्यूट कर लें और बात कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मोना जी। नीचे लेफ्ट साइड पे एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा। हाँ, अब आप बात कर सकते हैं। हे गुरु माँ, हाँ मन- का 7 दिसंबर का जो प्रोग्राम था फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया। अच्छा। अच्छा लगा, बहुत हाँ आनंद आया। बस मेरा एक सवाल था गुरुजी, मैं सहज योगा में हूँ अष्टांग योग। और माता निर्मला जी का फॉलो करती हूँ। हाँ कुंडलिनी योग क्या? मैं दोनों कर सकती हूँ। हाँ वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि करते कर, रहिए करते रहिए। सहज योगा भी करती रहूँ, आपको भी फॉलो कर सकती हूँ। हाँ हाँ जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अच्छा, जी गुरुजी। दो तीन चीजें आप ऐड कर लीजिए। जी गुरुजी, जैसे? जैसे डेली क्षमा याचना कीजिए ओके गुरुजी। सारी सृष्टि के जीवों से, अपने फैमिली मेंबर्स से, जी सबसे क्षमा याचना कीजिए। ओके गुरुजी। आप कोई भी जैसे क्रिया योग करते हैं, सहज योग करते हैं, हाँ हाँ। कोई भी योग साधना के पहले क्षमा याचना कीजिए जी गुरुजी। अपने परिवार के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, और फिर पूरी सृष्टि से। ओके गुरुजी। पहली बात तो क्षमा याचना। दूसरी बात, आपकी साधना के बाद में सबको आभार प्रकट कीजिए अच्छा गुरुजी। कि आप सबका, आपके जीवन में, आपके परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सारी सृष्टि का, आपके जीवन में जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए आभार प्रकट कीजिए। जी गुरुजी। और तीसरी बात, 1 मिनट का मेडिटेशन, 1 मिनट, 1 मिनट का मेडिटेशन दिन में 4-5 बार कीजिए। गुरुजी। हर 2 घंटे से 1 मिनट काफी है। ओके। अपने ग्रुप में भी है 1 मिनट का मेडिटेशन, नहीं है तो आप मांग लीजिए। हाँ वो नहीं है, वो मैं सिर्फ जो 7 दिसंबर वाला जो प्रोग्राम था उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हूँ। आप कोई खास बात नहीं है, आप कोई भी चीज हो ग्रुप में लिख दीजिए कि मुझे 1 मिनट मेडिटेशन चाहिए, मुझे आभार प्रकट करना चाहिए, कैसे करूं, कुछ भी लिख सकते हो ग्रुप में। ग्रुप ओके। में लिखते रहिए हाँ हाँ। तो वो आपको कोई ना कोई पोस्ट कर देगा। ठीक है गुरुजी। तो ये 3 चीजें आप करना शुरू कीजिए ओके और शेयर करते रहिए ग्रुप में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा गुरुजी। आपको कैसे फील हो रहा है। हाँ तो हाँ। मैं भी ग्रुप में हूँ तो आपको रिप्लाई देता रहूंगा। ठीक है गुरुजी। ऐसे गुरु, करके आगे बढ़ना है। मेरा बेटा है क्लास 12th में है, हाँ तो थोड़ा पढ़ाई से उसको मतलब उतना मन नहीं लगता, थोड़ा उसको आशीर्वाद, उसको थोड़ा गाइडेंस दे कोई चिंता मत कीजिए, कोई पढ़ाई का प्रेशर मत डालिए। जी गुरुजी। सुन इधर। बच्चे, नहीं पहले आप सुन लीजिए, नहीं तो वो बिगड़ नहीं, कोई एग्जाम के टाइम में ज्यादा प्रेशर, उसको बुलाइए। हाँ 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 गुरुजी, एक चले। क्या नाम है उसका? 1 मिनट खोलो, रुको बेटा। उसको पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलेंगे, बोल दो। हाँ, खोलो 1 मिनट, चले। नहीं खोल रहा, चले रे। नहीं खोल रहा, सीरियसली नहीं खोल रहा, चले रे। चाबी लगाओ। चाबी, चाबी कहाँ चाबी हमारे पास में है। है? खोलो। नहीं खोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है गुरुजी, मैं बाद में उससे बात उसको करा खाली दूंगी। नहीं, आप या तो ग्रुप में पूछ लेना, उसके लिए 2-3 चीजें हैं। हाँ जी गुरुजी। एग्जाम में अच्छा कैसे नंबर आए उसके लिए थोड़े टेक्निक्स हैं, ओके गुरुजी। वो बता दे। एनडीए की भी तैयारी कर रहा है गुरुजी। हाँ ठीक है, अगर वो आ जाए बाद में तो बात करा दीजिए, नहीं हाँ आता हाँ। तो ग्रुप में आप पूछ लीजिए, उसके लिए भी हम टेक्निक्स दे देंगे। ठीक है गुरुजी। ठीक है। शत शत नमन गुरुजी, हाँ गुरु खुश, महाराज। खुश रहिए। हाँ मोहित भाई, कुछ बात करनी है?
हाँ, नमस्कार गुरुजी गुरुमा। तो कुछ नहीं, सबके क्वेश्चन आंसर सुन रहा था, तो आई थॉट हाथ उठा हुआ है तो मैंने देखा कुछ आशीर्वाद देने के लिए उठाएगा। नहीं नहीं, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि स्त्री एकदम शक्तिमान है, तो जस्ट कहना चाह रहा हूँ कि वुमेन इज टोटली कंप्लीट बिकॉज दे हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, करेक्ट। whereas men में एक ही एक्स है और दूसरा वाई है, so he is incomplete. So I इनकम्प्लीट। just wanted to encourage women that they are more stronger and Correct. Absolutely, that's true. And second, men have taken birth from women in any case. correct. So वैसे भी देखा जाए तो इंसान एक पुरुष का अस्तित्व वुमेन से ही तो आता है। Correct. And still after अस्तित्व होने के बाद भी he is still incomplete because he has only X and he has one Y chromosomes, whereas women have both X chromosomes. That is very good scientific proof Correct. that woman is complete. But problem with the men is men's ego. That makes the men feel that he is complete and woman is incomplete. Correct. So ये men's दूसरा आपने जो बता रहा था कि किसी ने पूछा था कि आपको आई फील टायर्ड एंड देन यू एडवाइज दैट कि 1 मिनट मेडिटेशन करे, बट माय एक्सपीरियंस 100% says that whenever you are meditating for a minute, half a minute, when I was working doing job and all, it definitely recharges you. Yes. And your work efficiency definitely increases. Undoubtedly. And that's my experience. Yes, most of the people have experienced that. It is generally our mind is in a loop of thoughts. There's a loop of thoughts. There's a chain of thoughts. And that chain of thought tires the mind. If that chain is broken, even for a minute, it recharges. It gets connected to the consciousness, its own source, and it gets recharged. So very good experience you had. That will also benefit others. And another experience I would like to share is कि जैसे जैसे लाइफ पे मैंने मेरे नीड्स रिड्यूस करते गया, मिनिमल नीड्स पे लाइफ आई वुड लाइक टू लिव, एंड विथ मिनिमल डिपेंडेंसी आई वांट टू लिव, my happiness index is going up like anything. Very true. Apart from the spiritual, this thing, Yeah. awareness and all those things, but minimal needs and minimal dependency is really boosting my happiness like anything. Very Because I'm not dependent and I have less friction. I'm not this thing, my expectations have become less and everything. And it's a really very, very encouraging thing to That's be less dependent. Dependency has an free attachment of expectations also. Correct. When we are dependent on someone, then we expect the other person to fulfill some duties and responsibilities towards us. Our expectations of dependency, causes all that disappointment, friction. So rightly said, as much dependency we reduce and minimal requirements. जैसे जैन धर्म में अपरिग्रह एक कॉन्सेप्ट है. अपरिग्रह is not to acquire more than what you need. So ये भी एक मिनिमम डिपेंडेंसी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम डिजायर्स में आ जाता है. Including, so I'm doing this. The reason I want to share is that my happiness index has gone up like anything. Definitely, it will go up. Happiness is dependent. We should be more dependent on happiness rather than dependent on world or worldly people. Now, happiness has become my religion now. Very nice. To be happy and to make others happy, that's my religion now. Very good. Very good. So only dependency में एक ही exception है कि we have to be dependent on Guru. That's true. That's it. बस इतना ही share करना चाह रहा था. So if anybody else is there, Very nice. गुरुजी, शोभा जी इज हियर, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं. शोभा आंटी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट कर लीजिए आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही.
हो गया, ठीक हाँ है। हाँ जी। हाँ शोभा जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मॉर्निंग का काम चल रहा था तो मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, फिर भी जी पूरा आप लोगों में अटका हुआ था मेरा कि कब बात करूं। आखिरी में बेटे को बोला कि अब मैंने सब रख दिया है, तुम्हारा देखो मैनेज करो, मैं चली गुरुजी से बात करने को। बहुत अभी खुशी हुई गुरुजी। अभी तो सुबह है ना वहां पर। हाँ, यहाँ पे सुबह हाँ 8:45 हो रहा है मॉर्निंग। हाँ, और 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 गुरुजी आपका जो इसका 25th प्रोग्राम मैंने देखा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जब प्रदक्षिणा सब कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, और बहुत आनंद आया। और ऐसे लगा कि हाँ, ये मौका मुझे भी कब मिलेगा। मिलेगा कभी ना कभी। ऐसे मिलावा ही है। आप कहीं भी प्रदक्षिणा कर लीजिए, एक एक चक्कर लगा लीजिए आपके रूम में, उसको भी चेतना की प्रदक्षिणा मानी जाती है, क्योंकि चेतना सर्वव्यापक है। और चेतना की प्रदक्षिणा, गुरु की प्रदक्षिणा, भगवान की प्रदक्षिणा भी मानी जाती है। तो आप रोज सुबह अपने कमरे का एक चक्कर लगा लीजिए और ये भावना कीजिए कि मैं चेतना की प्रदक्षिणा कर रही हूं, चेतना की परिक्रमा कर रही हूं, तो सारी सृष्टि की परिक्रमा हो जाएगी। जैसे गणेश जी ने शिव जी और माता पार्वती की प्रदक्षिणा की, तो सारी सृष्टि ठीक है की गुरुजी। प्रदक्षिणा मानी गई। वैसे ही चेतना की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से सारी सृष्टि की प्रदक्षिणा, सारे सृष्टि के गुरुओं की प्रदक्षिणा, सारे सृष्टि के भगवान की प्रदक्षिणा मानी जाती है। तो ये कर लीजिए आप। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। एक नया नया कॉन्सेप्ट, एक नया ज्ञान, एक नया तरीका मिल गया ना। हाँ, ये कीजिए। ठीक है गुरु। ठीक है। और प्रणाम। हाँ खुश रहिए। गुरुजी, वेनु जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। हाँ वेनु जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी। यस मैडम। गुरु जी गुरु प्रणाम। आपके हर सेशन में मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। ओके। सो ये करेक्ट हो रहा है, और आगे जाके कैसा होगा। और मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि अगर आश्रम में हर महीना 1-2 दिन का यही सेशन एनलाइटनमेंट के लिए प्रैक्टिस करवाया जाए, कैसा रहेगा, ऐसा आइडिया चल रहा है दिमाग में। मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अच्छा सो ये रहेगा। मेरे सामने है। अच्छा रहेगा। प्लान करेंगे ऐसे कुछ। जी गुरु जी, बहुत दिनों से हो रहा है, हम्म। आपसे मिलने को नहीं हो रहा था। अब आप शेयर अब हो गए, ओपन हो गया, बाहर आ गया। हर सेशन में भावुक हो रहा हूँ मैं, बहुत बहुत भावुक हो जा रहा हूँ। भावुक एक दिन आप बोल रहे थे कि फॉलोवर, हम जब मंदिर में जाते तो अपने आंसू से शिवलिंग का अभिषेक करना। सो ये मेरे साथ हर सेशन में हो रहा ओके। है। एक दिन बहुत हो गया था, उस दिन शेयर करना था, वाह बहुत बिजी था, बहुत लोग थे, मैं ऐसे चले आ गए। नहीं तो ये है ये प्रपंच। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लिया करो, तो सबको पता चल ठीक है। ऐसा ऐसा हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा हर किसी को एक्टिव रहना चाहिए थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि जूम जी गुरु जी। कभी कभी होता है, आश्रम में कभी कभी प्रोग्राम होता है। व्हाट्सएप तो 24 घंटे ओपन है, जी गुरु जी। वहाँ शेयर कर लेना चाहिए। और ये भावुक होना बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ये जी हमारा ईगो, हमारा अहंकार, हमारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कहता हूँ। जब पिघलने लगता है, जैसे मोमबत्ती पिघलती है, तो वैसे ही हम भावुक होने शुरू होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आगे बढ़िए ऐसे ही जी भाव। गुरु जी, अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। वो बहुत अच्छा है। आपसे बात करो तो गए। जब हम अपनी स्वामी जी के हाँ बोलिए। स्वामी जी के नाम लेते हुए, हर काम में स्वामी जी के नाम ले रहा हूँ, जब भी बहुत भाव हो रहा हूँ, रोजाना प्रतिदिन ये एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा। हिम्मत मिलता है, बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत हिम्मत मिल रहा है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुरुजी, मोना जी के बेटे सनील इधर आ गए हैं।
हाँ he would like to seek guidance from you. Please unmute कर लीजिए मोना जी. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सती, सनील. तुम्हारा 12th का एग्जाम है क्या अभी? हेलो, अनम्यूट करो। हाँ हेलो। हाँ सनी, प्रणाम गुरुजी। मम्मी प्रेशराइज कर रही है क्या बहुत पढ़ने के लिए? नहीं। एक काम करना, कोई भी एग्जाम्स के टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जी 3 चीजें फॉलो कर लो। एक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या चाहिए। जी एग्जाम्स में तुम्हारा रिजल्ट, तुमको कुछ परसेंटेज चाहिए। अभी 12th में है ना तुम, जी तो तुमको जो भी एक परसेंटेज चाहिए वो एक बड़े चार्ट पेपर पे लिख लो। जी सपोज 90% चाहिए, 95 चाहिए, 85 चाहिए, 99 चाहिए, जो भी चाहिए बड़े चार्ट पेपर पर लिख करके अपने रूम में लगा लो, कहीं पर भी घर में। जी और उसको डेली विजुलाइज करो कि एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो गया और तुमको वो परसेंटेज आ गया, ये विजुलाइज करो। जी नंबर 2, डेली शेड्यूल बना लो। हम क्या मेंटली सोचते हैं कि ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, उसके बदले एक डेली शेड्यूल बना लो। मॉर्निंग से तुमको कब उठना है और कब सोना है, जी तो कब कॉलेज जाना है, कब पढ़ना है, कब खाना खाना है, कब खेलने जाना है, कब वीडियो गेम खेलना है, कब फोन देखना है, कब टीवी देखना है। पूरा हर चीज का शेड्यूल बना लो। जी गुरुजी। और वो शेड्यूल में तुमको जितना पढ़ना है वो शेड्यूल में, 1 महीने के शेड्यूल में, 2 महीने के शेड्यूल में पूरा कवर कर लो उसको। जी और एग्जाम्स के 15 दिन फ्री रखो खाली रिवीजन के लिए, ऐसा शेड्यूल बना लो। हम्म और तीसरी बात, एट ए टाइम डोंट स्टडी मोर देन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। ओके। बहुत ज्यादा हम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ते हैं ना, तो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। जी आफ्टर 40-45 मिनट्स हम उतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सो वी जी आर स्टडिंग मैकेनिकली बट नथिंग गोज इनसाइड। जी तो आधी घंटा पढ़ो, 40 मिनट्स पढ़ो मैक्सिमम। उसके बाद में एक ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, और उस ब्रेक में एंटरटेनिंग, टोटल एंटरटेनमेंट, टोटली डिफरेंट। जी डोंट नोट स्टडीज। या तो फोन देख लिया, या टीवी देख लिया, या डांस कर लिया, या गाना गा लिया, या थोड़ा वॉक कर लिया, ऊपर आकाश को देख लिया, जी ऐसा कुछ करो। ये 3 चीजें फॉलो करो एंड यू विल कम आउट विद द बेस्ट रिजल्ट्स इन योर एग्जाम्स। जी गुरुजी। समझ में आ गया? जी रिपीट करो। नहीं नहीं। नहीं, रिपीट करो, क्या करना है 3 चीजें। पहला विजुअलाइज करना है कि कितना स्कोर चाहिए। करेक्ट। दूसरा शेड्यूल बनाना है। हाँ, और तीसरा एक स्ट्रेच में ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, 40-45 मिनट्स तक ही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो विजुलाइज करो तुम, जो तुम फिक्स करो इतना परसेंटेज चाहिए, वो जी तुम सबको डिक्लेयर कर दो, तुम्हारी मम्मी को, पेरेंट्स को, कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गेट दिस परसेंटेज। पढ़ने का प्रेशर मत लेना, कभी भी मत लेना। ये जी पढ़ने के प्रेशर का नहीं है। दिस इज ए स्मार्ट वर्क। यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू डू हार्ड वर्क, जी बट दिस इज स्मार्ट वर्क। फॉलो दिस। और कुछ भी तुमको और आगे गाइडेंस चाहिए तो मम्मी ग्रुप में है, उसमें तुम तुम भी मैसेज कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। ओके, जी धन्यवाद गुरुजी। बाय। धन्यवाद गुरुजी। Guruji, Surbi auntie, Advaitan Vinita are here to seek your blessings. ओके, प्रणाम गुरु जी, गुरु माँ। आए भी हो क्या अद्वैत? हाँ गुरु जी, सब कब अच्छा आए? आशीर्वाद। कब आए? परसों आए गुरु जी रात। ओके ओके, अभी रहोगे? हाँ जनवरी 20 तक है। ओह ठीक है, मिलेंगे बीच में, जी सत्संग के टाइम मिलेंगे।
जी गुरुजी। और वही कुछ गुरुजी आज लेकर आऊंगी, बच्चों को बोलकर बोली थी, फिर अब जूम में हो गया तो मैंने कहा कम से कम आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मिल गया। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू, ये थैंक यू। अद्वैत दुबला होता जा रहा, अद्वैत ठीक होती जा रही। गुरुजी वृंदाद्वैत का आप ही संभालिए, हमें नहीं मालूम है। ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद थैंक यू गुरुजी गुरुमा। हो गया सबका ज्ञान। यस गुरुजी। जोसेफ अंकल आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे थे गुरुजी। चलो लास्ट शेयरिंग। यस, you have to unmute, I think. Uncle, your voice is not coming. Maybe you have to adjust or remove the headset you're wearing. Maybe if you remove the headset from the phone, you can speak directly. चलो ठीक है, जी। we will meet next time. So see you everyone. Bye bye. धन्यवाद Thank you. धन्यवाद। Next Thursday मिलते हैं। Bye bye. बाय बाय। थैंक यू।